ourselves. Okay. So let's start. So simple and compound interest is a topic. Now, before we move into what are these, there are some terminologies that have to be, we should know about some of the terminologies that are going to be used in this chapter, right? Now, how many of you know the first one of them being interest? How many of you understand what interest is? Guys, how many of you understand what interest is? Anyone? Just a quick answer, one line answer. Anyone who is comfortable? All right. So see, interest simply means, see, let's say there are two people. Let's say me, I am there and Lakshay is there, right? Now, let's say I need some sort of money. I need some help, financial help from Lakshay, and I ask him for money, right? Now, he's not going to give me the money for free. He's going to tell me, okay, Bhalindu, I'm going to give you 100 rupees. But for those 100 rupees, I'm going to charge 10 rupees as interest, like extra 10 rupees for using my 100 rupees, right? So the extra money, beta mute kar le, hai na? The extra money that is paid by the receiver, just a second please, who is on unmute? Usually keep yourselves muted, right? If you want to ask a question, तो उस समय unmute कर लो, otherwise keep yourself muted, ठीक है? Otherwise वो noise दिक्कत देती है, ठीक है? So the interest is basically the money that the receiver pays for using the lender's money, right? So money paid by receiver for using the lender's money, right? Second important point is going to be the principal, right? Now, what is principal? So the 100 rupees that Lakshay gave to me for you for whatever purpose I wanted it. So that 100 rupees is basically known as the principal amount, right? So the money the lender gives is called principal. All right. Then the third important point that is going to come into picture over here is going to be your time. So time simply means, by in our case, as I gave you example, that Lakshay is telling me that I'll charge 10 rupees every year for the 100 rupees that I'm giving you, right? Now he is charging that 10 rupees for one single year, right? I might be borrowing it for 3 years, 4 years, maybe 20 years, 50 years. That is, so whatever is the duration, whatever is the time frame for which the money is getting borrowed, right? So that is basically referred to as time over here, right? So the time frame for which the money is borrowed. Money is borrowed. Then comes in your rate of interest. Now, what do you understand by rate of interest? So as the example we have taken, right? Lakshay is telling me that I'll charge 10 rupees for giving you 100 rupees, right? So 10 rupees he is charging on some basis, right? Now 10 rupees is how many percentage? What percentage of 100 rupees? It is 10 by 100, that is 10% of 100 rupees. So in our case, we can say that Lakshay is charging 10% per annum from me, right? Now let's say if Lakshay would have told me that I'll be charging 25 rupees every year for you using my money, right? So in that case, we would have said, but because 25 is 25% of 100 rupees, so Lakshay is charging me at the rate of 25% per annum, right? So the rate at which money is borrowed, rate at which money is borrowed. All right. And the last point is going to be your sum. So let's say I borrowed money from Lakshay for a duration of 1 year, right? Now, post that 1 year, now as you know that the 100 rupees I took from him, I'll have to return it back. So that 100 rupees I'll be giving him. Apart from that, as you all know, that he also said that I'll charge 10 rupees for using my 100 rupees, correct? So that 10 rupees also I'll be paying him. So the total amount of money that I'll be giving back to Lakshay, that is the receiver would be giving back to the lender after the duration has completed, after the time frame is elapsed, right? Post that, whatever is the amount of money that we are giving back is known as your sum,
right? So sum can be said as your principal plus interest. Is that clear to everyone? समझ में आ रहा है कि जो 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, उनका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट हो गया कि जितना पैसा जो है लेंडर चार्ज करने वाला है अपने पैसे को यूज करने के लिए। प्रिंसिपल हो गया जितना पैसा लेंडर जो है बोरो कर रहा है। टाइम हो गया जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो बोरो कर रहा है। रेट हो गया तुम्हारा जिस रेट पे जो है उस पैसे को वो बोरो कर रहा है। एंड सम हो गया द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज गिविंग बैक टू द लेंडर, that is your principal amount that he took as loan and the interest part as well, right? So the summation of both is known as your sum. Is that clear to everyone? guys फटाफट yes or no टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में, और इफ यू हैव एनी डाउट्स वो भी मेरे को बताते चलो। क्लियर है तो yes लिखते जाओ so that we can move ahead, right? Sir, I have one doubt. हाँ बताओ। जैसे आपने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, assume principal was 100 rupees and somebody borrowed saying that I will give back 125, 25 रुपए इंटरेस्ट था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% हो गया। बट अगर 100 था तो मुझे समझ आ गया, बट लेट्स से द नंबर वाज अ लिटिल डिफरेंट लाइक 150, ठीक है, और उसमें मैंने 25 रुपए करा होता, तब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता? तब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कैलकुलेट कैसे होता है, जो परसेंटेज मेरा कैलकुलेट होता है जितने पैसे मेरे को देने हैं, ठीक, दैट इज 25 रुपीज, करेक्ट। मेरे को कितने पैसे के ऊपर 25 रुपीज देने हैं? 150 रुपीज के ऊपर 125 150 के ऊपर 25 देने हैं, करेक्ट। सो दिस इज द रेशियो इन विच आई एम पेइंग। तो रेशियो कितना है कि फॉर अब अगर इसको देखोगे तो सिंपल 1/6 आया, करेक्ट। नाउ दिस सिंपली मींस दैट फॉर एवरी 6 रुपीज आई एम पेइंग अवे 1 रुपी, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है दैट इज 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100. So in our case, this is going to turn out to be 16.66%. क्लियर है अभी कि कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है? जितना पैसा हमको इंटरेस्ट के रूप में देना है डिवाइडेड बाय जितने पैसे के ऊपर वो इंटरेस्ट लग रहा है। तो तुमने जो एग्जांपल लिया उसमें तुमने बोला कि 150 रुपीज बोरो किए, 25 रुपीज का मैंने जो है इंटरेस्ट पे किया, 25 पे किए फॉर 150, दैट मीन्स फॉर एवरी 1 रुपी आई एम पेइंग 6 रुपीज। तो जो भी फ्रैक्शन मेरा आया मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द परसेंटेज वैल्यू, राइट? गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, ये जो पार्ट तुमने बोला ना, ये पार्ट तुम्हारा परसेंटेज की क्लास का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। परसेंटेज की क्लास में तो ये चीज हम काफी डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे अभी तुमने देखा होगा कि भाई 1/6 को आई डिड नॉट डू एनी कैलकुलेशन और सॉल्विंग ओवर दैट, डायरेक्टली रोट 16.66। दैट इज समथिंग बिकॉज ये सारी ना बहुत रेगुलर बेसिस की वैल्यूज है। जैसे 1/2 हो गया 50%, 1/3 33.33 हो गया, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16.66, 1/8 12.5, 1/9 11.11. So ये बहुत रेगुलर वैल्यूज है। So there will be a list of values in the class of percentage that I'll be giving you, जो आपको याद भी करनी पड़ेंगी so that आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी जो है इंक्रीज कर सके, right? All right. So let's move ahead then. So the next point is कि भाई अब there are two types of interest that are usually that are applied, right? The first one is your simple interest, right? The first one is your simple interest. अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बॉस? एक बेसिक डेफिनेशन के टर्म्स में, अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन के टर्म में मैं तुमको बताऊं, सो इट विल बी सेड एज when इंटरेस्ट is calculated over the every year on the original principle. अभी इसका मतलब समझते हैं कि भाई एवरी ईयर ओरिजिनल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होने का क्या मतलब होता है, राइट? सो लेट्स से जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था 100 रुपीज वाला, विल गो अहेड विद द सेम एग्जांपल, राइट? अच्छा, उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है फॉर सिंपल इंटरेस्ट, राइट? देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज PRT/100, करेक्ट? ये हो गया अपना एक फॉर्मूला, राइट? नाउ द थिंग इज कि हमको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेट्स से आई टुक द लोन, लेट्स से जो मैंने लोन लिया दैट इज ऑफ 100 रुपीज, राइट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 10% फॉर मी एंड द टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी 3 years, लेट्स से, राइट? लेकिन अब इसके अंदर मान लेते हैं अगर मेरे को डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि लेट्स से आई टुक 100 रुपीज फ्रॉम यू एट द रेट ऑफ 10% और मेरे को 3 साल के लिए मैंने लिया है, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट दैट आई बी पेइंग यू?
तो उसके लिए तो वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला कि भाई पीआरटी बाय 100 कर दिया, दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. करेक्ट, विल गेट आवर आंसर एज 30 रुपीज. सो 3 साल तक 100 रुपीज को यूज करने के लिए हमको 30 रुपीज, सॉरी 30 ईयर्स लिख रहा हूँ, 30 रुपीज जो है हमको पे करने पड़ेंगे. राइट, एक तो हो गया ये हमारा बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला जब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो कि बॉस कितना इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो XYZ रुपीज को यूज करने के लिए, जो कि XYZ सालों के लिए आपने लिया और फलाना रेट पे आपने लिया है. राइट, बट अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि यार अगर क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ना करके, जो कि कैट में यूजुअली किया जाता है, कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वो तुमको पूछेगा नहीं, इतनी सिंपल चीज वो तुमसे पूछने नहीं वाला. राइट, सो टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या है, अब हम उसके मैकेनिज्म को समझते हैं. राइट, तो अभी हमने क्या लिखा था कि मेरा इंटरेस्ट जो है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल एवरी सिंगल ईयर. तो अगर मेरे को फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, राइट, अगर मेरे को सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, हाउ विल आई बी कैलकुलेटिंग? सो माई लोन अमाउंट इज 100 rupees, right? My rate of interest is 10%. And if I'm calculating only for the first year, my time frame is going to be 1 divided by 100. Formula तो same रहेगा भाई interest निकालने का, right? So I will get 10 rupees as my interest. ठीक है, I will be getting 10 rupees as my interest. लेकिन अब जो बात आती है कि एवरी ईयर ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो जब हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, नाउ दिस आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द सेकेंड ईयर, नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कंबाइंड, ओनली द सेकेंड ईयर. तो हमने थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या देगी, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल. तो ओरिजिनल प्रिंसिपल तो अभी भी मेरा 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा अभी भी 10 रुपीज है, और टाइम फ्रेम क्योंकि मैं केवल सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहा हूं, सो इट इज गोइंग टू बी 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100. I'll be getting 10 rupees as my interest again. And similarly for third year I'll be getting 10 rupees. Right, अब तुम देखो, एक तरफ था मेरे पास जिसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया एंड आई गॉट द इंटरेस्ट दैट आई हैव टू पे फॉर ऑल द 3 years single handedly. Right, apart from that, this is the mechanism that is being followed, that is for any year that you have to calculate. Let's say कोई तुमको बोलता है कि भाई तुम 10th year का निकालो, again the formula is going to remain the same, that is the original principal multiplied by whatever the rate is multiplied by 1, because we are calculating it for the 10th year, divided by 100. Right, so you will be getting 10 rupees as your interest. Right, समझ में आ रहा है कि मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, और अगर डायरेक्ट जो है हमको पूछता है तो किस तरीके से आंसर होता है. इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. एनी डाउट्स दैट यू हैव? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत इजी चीजें हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दीज आर, तो बचपन में ही पढ़ा हुआ है यार, आता है ये सारी चीजें. एनीवन, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? लक्ष्य, कैन यू प्लीज लाइक कीप योर हैंड डाउन एंड उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो. Alright. See guys, now the thing is कि भाई मेरे को ना, see from my perspective if I tell, I hate people who have left like QA for a very long time, right? So from my end I always have to start from the very basics. ठीक है, उसका सिंपल सा रीजन है भाई कि मेरे को I have to take everyone into picture, right? थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, बिकॉज देयर विल बी थिंग्स दैट यू वोंट बी नोइंग दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. ठीक है, एंड दैट विल बी द केस इन एवरी पर्टिकुलर चैप्टर. राइट, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू करने का मेरा रीजन यही रहता है, क्योंकि भाई मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं हु हैव लाइक लिटरली लेफ्ट मैथ्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. राइट, तो उसको भी मेरे को कवर करते हुए उनको साथ लेकर के मेरे को चलना होगा. राइट, एंड दैट इज द रीजन कि हम थोड़ा सा बेसिक्स को भी जो है हल्का हल्का रिवाइज करते चल रहे हैं. राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया गाइस? सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक क्वेश्चन करो, चलो लेट्स से दैट ए हैज टेकन अ लोन ऑफ, ए हैज बोरोड 250 रुपीज फ्रॉम बी, राइट, at the rate of 15% per annum for the time of frame of 4 years. What is the final sum that will be repaid? फाइनल सम क्या होगा जो रीपे किया जाएगा? टेल मी, आराम से सोच लो.
Sir, could you repeat rate of interest? I missed that. The rate of interest is 15%, beta. Ankita, perfect. दक्षिता नहीं बेटा, गलत है। वसुंधरा परफेक्ट, स्निग्धा परफेक्ट। Anyone else? नहीं, संस्कृति गलत है बेटा, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सिंपल सा था भाई, 4 साल में मेरे को कितना इंटरेस्ट के साथ मतलब टोटल सम मैंने पूछा है, राइट। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बॉस इस पैसे को यूज करने के लिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आई एम गोइंग टू पे। दक्षिता जो तू बोल रही है बेटा, दैट इज द इंटरेस्ट दैट यू विल बी पेइंग, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना इंटरेस्ट है? दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। So there is my principal of 250, there is my rate of 15, and there is a time frame of 4 years divided by 100, right? What will I get? 0 से 0 गया, this goes 2 times, sorry 3 times, this goes 2 times, this goes 2 times. So 25 into 3 is 75, 75 into 2 is 150. So 150 rupees is the interest that I am paying. But my question is to find the sum. अभी sum हमने क्या पढ़ा था? It is principal plus interest. तो प्रिंसिपल मेरा कितना था? 250 रुपीज। इंटरेस्ट मैंने कितना जनरेट किया? 150 रुपीज। दैट मींस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम गोइंग टू रीपे आफ्टर 4 years इज गोइंग टू बी हाउ मच? इट्स गोइंग टू बी 400 रुपीज। इज दैट क्लियर? अभी समझ में आ रहा है गाइस? अभी समझ में आ रहा है? दक्षिता समझ में आया बेटा? कहां गड़बड़ हो रही थी? संस्कृति समझ में आया? Yes, sir. परफेक्ट। सो लेट्स मूव इट। अब बात करते हैं बॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, राइट? एनी गेसेस? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सर P ब्रैकेट 1 + R की पावर में n। वो तो फॉर्मूला हो गया, सॉरी वो तो फॉर्मूला हो गया। थ्योरी में कैसे बताओगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो सर विच हैज बीन पेड एनुअली। सॉरी, एक एक करके कौन बोल रहा था? परफेक्ट अंकिता, योर डेफिनेशन इज परफेक्ट। ऑलराइट, आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट हैपेंस इज द इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर is added to principal of that year. Is added to the principal of that year to get the principal of next year, right? समझ में आ रहा है क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं? इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू प्रिंसिपल ऑफ दैट ईयर to get the principal for the next year. How many of you are getting confused in this? How many of you are getting confused? समझ में आ रहा है सबको? ऑलराइट, अब देखो एक छोटा सा डिफरेंस पहले तो हम समझेंगे भाई फॉर्मूला बेस्ड वे में क्या होता है। तो एक चीज याद रखो, जब हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, राइट, सो द थिंग दैट वी वर कैलकुलेटिंग वाया फॉर्मूला वाज द इंटरेस्ट part, right? We were only calculating the interest wala part while we were doing simple interest. Now in case of compound interest, the formula that we have is directly for the sum or the amount. तो sum बोलते हैं या फिर उसको हम amount भी बोलते हैं, right? और sum या amount का formula क्या होता है? Principal multiplied by 1 plus rate of interest divided by 100 to the power n, where you know that P is your principal, R is your rate of interest, and n is your time frame, right? यहां पे हम टाइम को n से रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअल, राइट? फॉर्मूला समझ में आ रहा है गाइस? फॉर्मूला समझ में आ रहा है?
अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके बाद समझेंगे कि एक तो हो गया डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, राइट, लेकिन उसके अलावा हमको ये भी समझने की जरूरत होगी कि भाई उसका बेसिक मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है, राइट। सो एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, अगेन द सेम टाइप। द प्रिंसिपल फॉर मी इज 100 रुपीज। दोबारा से मैंने जो उधार लिया, जो बोरो किया मैंने पैसा, दैट इज अगेन 100 रुपीज, राइट, एंड अगेन माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ठीक है, एंड माई टाइम फ्रेम अगेन इज गोइंग टू बी 3 years। सिंपल इंटरेस्ट के केस में कितना इंटरेस्ट पे किया था गाइस, फटाफट बताओ, क्या इंटरेस्ट पे किया था सिंपल इंटरेस्ट में? 100 रुपीज थे, 10% था, 3 years था, कितना इंटरेस्ट पे किया? 30 rupees. 30 रुपीज। अब इस फॉर्मूले में लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है, राइट। सो आई हैव 100, 1 plus 10 by 100 to the power 3. So what do I get? 100 multiplied by, this will be 110 by 100 to the power 3. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 into 11 by 10 multiplied by 11 by 10 multiplied by 11 by 10. So what do you get? 0 से 0 0 गए, दोनों 0 लेकर के गए। 11 का क्यूब इज 1331 डिवाइडेड बाय 10, क्या मिला मेरे को? 133.1 रुपीज। अच्छा, फॉर्मूले से हमको ये मिला, ये मेरा क्या है गाइस? ये मेरा अमाउंट है या फिर सम जिसको हम बोलते हैं, और सम हमें पता है क्या होता है, सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मेरा सम आ रहा है 133.1, मेरा प्रिंसिपल था 100 रुपीज, तो मेरा इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 33.1 रुपीज। अभी समझ में आ रहा है कि सीआई के केस में हम इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और सम हमको किस तरीके से मिलता है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है अभी गाइस? एवरीवन यस और नो? ठीक है, मेरे को बस बताते रहा करो, अदरवाइज आई भी ना डिलेमा कि भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि नहीं Yes. समझ में आया तो डाउट क्लियर करते रहना इज मच मोर इंपॉर्टेंट, कि उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो वो छूटता चला जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट। जहां पे भी कोई भी इशू हो उसको पूछ लो, और नहीं है तो मेरे को यस बोल दो, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि हाँ भैया क्लियर है, राइट। अच्छा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ा गेम यही होता है, और अभी तुम समझोगे क्यों होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड अगर सेम वैल्यूज पे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सेम टाइम में लगाते हैं, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट आउट परफॉर्म्स द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट के से कम होती है। अब समझते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। तो इस लाइन को याद रखना, इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू प्रिंसिपल ऑफ दैट ईयर टू गेट द प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब मैकेनिज्म समझते हैं होता क्या है। तो भाई जब आई एम कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, कैसे करूंगा? प्रिंसिपल मेरा 100 रुपीज है, रेट मेरा 10 रुपीज है, 10% है, टाइम मेरा 1 साल का है, मेरे को कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ? 10 रुपीज, ठीक। अच्छा, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। ये बात को खास ध्यान रखना, इससे इसके बेसिस पे भी सवाल पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, कि भाई, और ये मतलब इसको कनेक्ट करते हुए, क्योंकि जिसमें आपको ये याद होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, जब हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो दोनों में इंटरेस्ट जनरेशन से चेंजेस आने शुरू होते हैं सेकेंड ईयर से, और वो क्यों आते हैं ये समझो। तो मेरा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा? मैंने क्या बोला था? The interest of the year is added to principal of the year to get the principal of next year. तो पिछले साल का प्रिंसिपल 100 रुपीज, इंटरेस्ट 10 रुपीज, दोनों ऐड हो जाएंगे तो मेरा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा? 110 रुपीज। और इसी की वजह से अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा? क्योंकि अब मेरा प्रिंसिपल 100 से बढ़ के 110 हो चुका है, सो बट ऑब्वियस माई इंटरेस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। So 110 is new principal. Rate of interest remains the same. Again, I am calculating only for 1 year. So it will be 1 divided by 100. I will get 11 rupees as my interest. अच्छा, principal for third year अब क्या होगा? तो मैंने क्या बोला था? Principal interest of that year will be added to principal of that year to get the principal of next year. तो ये है principal, ये है interest उस साल का, उन दोनों को ऐड किया तो principal of next year निकल के आया, और वहां से मेरा निकलेगा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर अब मेरा कैसे निकलेगा? 121 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। आई विल गेट माय रेट, माय इंटरेस्ट पार्ट एज 12.1। तीनों का समेशन कर लो, इट विल टर्न आउट टू बी 33.1, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ सकता है।
बट इस पार्ट को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे, वो आपको घुमा करके इसमें से भी अंदर से पूछ सकता है, एंड दैट इज व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? समझ में आया गाइस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. परफेक्ट। एक क्वेश्चन कर लें इस पे भी छोटा सा। सॉर्टेड? एक क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चंस दैट विल बी डूइंग फॉर दिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। द प्रिंसिपल फॉर मी इज लेट्स से 5,000 rupees. The rate of interest is 10% and the time frame is 2 years. Right? The time frame is 2 years. And you have to give me the amount as well as the compound interest that has been generated. Right? ये मेरे को कैलकुलेट करके बताओ एंड ट्राई टू गिव बोथ द आंसर्स टुगेदर। अकेले सिंगल सिंगल में मत देना। राइट? ट्राई टू गिव बोथ द आंसर्स टुगेदर। What will be the amount or the sum that will be repaid, and what will be the compound interest, accumulated compound interest for both the years? Abhinav, perfect, good. Ankita, good. Basundhara, good. रूपाली, गुड। अच्छा, जितने लोगों ने आंसर कर दिया ना, इसी में मैं एक छोटा सा चेंज और लेके आ रहा हूं। मेरे को बताओ इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर कितना होगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी मेरे को अलग से बताओ। लक्षिता, गुड। साहिल, गुड। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरे को अलग से बताओ। साहिल, परफेक्ट। अंकिता, गुड। Giving you guys 2 more minutes. Basundhara, good. ऑलराइट, रूपाली, गुड। अब देखो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जब मेरे को अमाउंट कैलकुलेट करनी है गाइस, राइट, द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज कैलकुलेट द अमाउंट। राइट? हाउ विल आई बी कैलकुलेटिंग? सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास डायरेक्ट। दैट इज योर प्रिंसिपल, दैट इज 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus 10 by 100 to the power 2, which will turn into a 5,000 multiplied by 11 by 10 multiplied by 11 by 10. Right? This is gone, this is gone. This is 121 multiplied by 50 and you will get 6050 as your amount. तो अमाउंट का मेरा आंसर हो गया 6050। अच्छा, इंटरेस्ट कितना बना भाई? प्रिंसिपल 5,000 था, अमाउंट 6,550 है। राइट? तो कितना इंटरेस्ट पे किया मैंने? 1050 का इंटरेस्ट पे करा मैंने। राइट? 1050। लेकिन जब बात आती है निकालने की कि भाई मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो आप क्या तरीका फॉलो करने वाले हो?
तो जो आपका तरीका लगेगा दैट इज यू विल बी कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर कैसे निकालोगे बॉस? 500 into 10, right? Multiplied by 1 divided by 100. So what do you get? You get 500 rupees as the interest for first year, right? अच्छा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 500 है, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा? 5500. 5500 का 10% आपको निकालना है, so that is going to be 550 rupees, करेक्ट? तो सेकेंड ईयर की अगर हम स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो मेरा 550 होने वाला है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैसे कैसे होंगी कैलकुलेशंस आपकी? सॉर्टेड है? Sir, I have a question. हाँ बताओ. So if the number of years is like 4-5 years, and if we are asked that calculate the interest for the fourth year, तो in that case तो हमको like वो ये sequence जो है वो follow करना पड़ेगा. तो इसके लिए कोई shortcut formula है बता क्या दो. जिससे? देखो, फॉर्मूला हर चीज के लिए है, ठीक है, बट मैं अभी इसलिए नहीं बताया था क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए. ठीक, अभी हमको, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना. अभी हमको पता है कि सिंगल ईयर का मैनुअली अगर कैलकुलेट करने को पड़ जाए हमको तो कैसे करेंगे, राइट? क्योंकि स्नैप में नहीं है कैलकुलेटर एंड मैट में नहीं है कैलकुलेटर. अगर आ जाए, राइट, तो उसके लिए हमको वो तरीका पता होना चाहिए. अब आते हैं, अगर मेरे को डायरेक्टली निकालना है किसी साल का, राइट, तो डायरेक्टली निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर k माइनस 1. सो लेट्स से मेरे को, जैसे तुम्हारा सवाल था कि फोर्थ ईयर के लिए अगर मेरे को निकालना, राइट, मेरे को अगर फोर्थ ईयर का निकालना, तो सेम वैल्यूज पे अगर मैं तुमको इक्वेशन लिख करके दिखाऊं, सो दैट वुड बी 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 100 1 प्लस 10 बाय 100. मेरे को किस ईयर का निकालना है? फोर्थ ईयर. फोर्थ को मैं बोलूंगा अपना kth ईयर. तो kth ईयर का निकालना है तो पावर में मेरा क्या जाएगा? k माइनस 1, दैट इज पावर होगा मेरा 3. इज दैट क्लियर? अच्छा, इस तरीके से ये निकलेगा तुम्हारा, दैट इज ये क्या हो जाएगा? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 11. समझ में आया बेटा कैसे करेंगे? सॉर्टेड है? अब इसको कर लो एक बार. 3 जीरो यहां से गए, 1 0 यहां से गया, राइट? व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? 1331 डिवाइडेड बाय 10. व्हाट डू आई गेट? 133.1. नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन. बाय 100 1 प्लस 10 बाय 100 10 10 10 0 0 0 गया. अच्छा, 1 0 यहां से गया. 11 into 121. अच्छा, 1331 into 5. सॉरी, 1331 into 5 कितना होगा? 1331 into 5 5 5 3 15 कैरी ओवर 1 5 3 15 16 कैरी ओवर 1 5 5 5 1 5 1 6. तो ये हो गया तुम्हारा 665.5. तुम इसको मैनुअली जब चेक करोगे फॉर फोर्थ ईयर यू विल गेट इट टू बी 665.5. चेक करके भी देख लें एक बार, मैनुअल वाले से मिला करके देख लें भाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉर्मूला. क्या बोलते हो? कर लिया सर, जाए? मुझे दो डाउट है. बताओ. तो मुझे k माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? के मेरा जो रिप्रेजेंट करता है, तो वॉट एवर ईयर, जैसे तुमने मेरे को बोला, तुम ही ने बोला था ना बेटा, ओके, तो जैसे तुमने बोला कि फोर्थ ईयर का निकालना है, तो फोर्थ मेरा kth ईयर में मान लो, राइट? तो क्योंकि मेरे को फोर्थ ईयर का निकालना है तो पावर मेरा क्या जाएगा? 4 क्या है मेरा? k है, तो पावर में क्या जाएगा? k माइनस 1, दैट इज 3. अगर मेरे को तुम बोलते कि सिक्स्थ ईयर का निकालो, तो सिक्स्थ ईयर में मेरा k क्या होता? 6 हो जाता. तो यहाँ पे पावर में क्या आता? पावर में मेरे पास 5 आता. क्लियर है अभी? ठीक है. और सेकंड था कि दिस होल थिंग फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग सम, राइट? No, Not here this is compound directly interest. for calculating the compound interest for अच्छा, kth for that. year, right? ठीक है, Hmm. got it? Everyone is clear on this, guys? ये फॉर्मूला भी क्लियर है guys? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एक और चीज मैं इसमें थोड़ा सा तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है? बिकॉज दिस इज अ डेमो क्लास में सारी चीजें तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, बिकॉज इट विल गेट थोड़ा सा बोरिंग तुम लोगों के लिए भी एंड क्वाइट लेंथी, बिकॉज नॉर्मल क्लासेस अपनी 2 आवर्स की होती है. लेकिन इंपॉर्टेंट एक दो चीजें मैं और तुमको बताऊंगा इसमें, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंडिंग
मोर देन वंस अ ईयर का, मोर देन वंस अ ईयर। अच्छा, अब मेरे को एक बात समझाओ कि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, राइट? अगर मैं बोलूं दैट आई एम डूइंग कंपाउंडिंग एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, तो मैं कितने बार साल में कंपाउंडिंग करने वाला हूं? ऑल ऑफ यू टेल मी दिस। अगर मैं बोलूं दैट आई एम गोइंग टू कंपाउंड एवरी 6 मंथ्स, तो इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू डू द कंपाउंडिंग वर्क? Twice. Similarly, if I say that every 4 months I am going to do the compounding, right? How many times will I do the compounding in a year? Thrice. If I say that I'm going to do the compounding every 3 months, how many times will I do compounding? Perfect. 4 times. If I say that I'm going to do compounding every 2 months, कितने बार करूंगा मैं compounding साल में? 6 times, right? ये बात सबको समझ में आ रही है? What I am saying कि भाई every 6 months I am going to do compounding, तो कितने बार करूंगा? If I say every 3 months मैं कंपाउंडिंग करूंगा तो एक साल में कितने बार करूंगा? ये बात सभी को समझ में आ रही है गाइस? ये बात समझ में आ रही है सबको? किसी को इसमें किसी तरह का डाउट? तो अगर डाउट नहीं है तो एक बात समझो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो अभी हम फॉर्मूला कर रहे थे, ठीक है? ये जो अभी हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, राइट? दिस फॉर्मूला इज फॉर व्हेन कंपाउंडिंग इज डन ओनली वंस अ ईयर, राइट? दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर व्हेन कंपाउंडिंग इज डन, मैं लिख भी दे रहा हूं, राइट? कंपाउंडिंग इज डन वंस अ ईयर, राइट? बट जब सवाल आ जाता है दैट कंपाउंडिंग विल बी डन मोर देन वंस अ ईयर, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? So in that case, the formula that I'm going to have is that your amount is equal to principal multiplied by 1 plus r by 100 dot x to the power n dot x, right? अच्छा, p आपको पता है क्या होता है, r आपको पता है क्या होता है, n आपको पता है क्या होता है, बट अब ये x क्या आ गया, घुस गया बीच में. So x is basically the number of times compounding is done. Right? So if I say, if the question is कि भाई okay, एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं कि let's say I have taken a loan of 5,000 rupees where the rate of interest is 10%. I've taken the loan for 2 years, right? But the rate of interest is, but the compounding is done every 6 months. Compounding every 6 months, right? तो अब मेरा नया फॉर्मूला क्या लगेगा और मेरी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी? दैट द फाइनल अमाउंट इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल 1 plus r by 100, 100 multiplied by number of times compounding is done. So if compounding is done in every 6 months, the number of compounding done will in a year will be twice. Similarly, the time frame for me is 2 years, but compounding is done twice a year. So here also you will have a multiplied by 2. And the final equation that you will have to solve is going to be 5,000 multiplied by 1 plus 5 by 100. मैंने इसको यहाँ से ले लिया, ठीक है, to the power 4, right? Or simply this is going to be 5,000 multiplied by 21 by 20 to the power 4. ये आपका अमाउंट आ जाएगा. Just a second, I'll also have to use calculator for this. Okay. So your amount in this case is going to come to be 6,077.53 rupees. Is that clear? कि जब compounding more than once a year होती है, so what is the formula applied and how does it work? Is that clear to everyone? Any doubts in this? Guys, any doubts? Or shall we move ahead? एक क्वेश्चन करोगे इस पे? Let's do a question on this, right?
let's do a question on this. And feel free to use your calculators, right? Because इसके calculations थोड़े से तुम्हारे जो है complicated होंगे. It is going to be very difficult to like do it without calculator, right? So the principal assume it to be, but I'm going to give you simple values. Principal is 1,000 rupees. The rate of interest is 20% per annum. The time frame is 3 years, and compounding is done every 3 months, right? Every 3 months. Time frame 2 years ले लो, ठीक है? Time frame is 2 years. Compounding is done every 3 months, right? Rate of interest is 20%. Principal is 1,000 rupees. बताओ. Use your calculators. Feel free to use your calculators for this. नहीं दक्षिता, गलत है बेटा. All right, Abhinav. नहीं दक्षिता, I think you're right. Ankita, you're wrong. Properly good. Vasundhara, perfect. All right. दक्षिता, yours is right. अंकिता गलत है बेटा, ठीक है? एंड बाकी लोग भी try to answer, ठीक है? Anshuman, good. Right, guys. So if compounding is done every 4 months, how many times is compounding going to be done in a year? It is going to be done 4 times, right? So the formula that you'll have is 1,000 multiplied by 1 plus 20 divided by 100 multiplied by 4 to the power 2 years multiplied by 4 times a year, right? So this is the formula you will have. Upon calculating, you will get the value of 1,477.45 rupees. So compounding more than once a year is clear to everyone? Guys, compounding more than once a year is clear to everyone? Yes, sir. Let's move ahead. I'll be explaining one more concept that's there. Okay. So, beta. Can you go back to that last slide? Actually, last slide, but बताओ उसमें क्या डाउट था? हाँ, मैं दोबारा लिख दूं फॉर्मूला? मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ. So this is what you have: 1 plus 20 by 100 multiplied by 4 to the power 2 into 4. हाँ, अब बताओ. हाँ, इसमें 4 you're writing because you're thinking compounding every 4 months है. Every 3 months. Compounding is done every 3 months, right? So अगर हर 3 महीने में मैं कर रहा हूँ, तो पहली बार मैं तीसरे महीने पे करूंगा, फिर मैं 6th मंथ में करूंगा, 9th मंथ में करूंगा और 12th मंथ में करूंगा. क्लियर है? So I'm doing the compounding 4 times a year, right? But अगर मैं compounding every 4 months करता, तो 4th month में करता, 8th में करता, 12th में करता, 3 बार करता. क्लियर है? अभी सॉर्टेड है? परफेक्ट. चलो
Just one last concept, guys. So how many of you are repeaters over here? How many of you are repeating? Like have मतलब और अच्छे से पढ़ाई करी है, you know the concepts and things. How many of you are of that category? How many of you heard about loan wala concept in SICA? Guys, how many of you have heard about the loan concept? None? क्या कर रहे थे भाई? ऑलराइट, सो एक कॉन्सेप्ट होता है आपका लोन का, ठीक है? तो लोन में आपका एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है इक्वल इंस्टॉलमेंट का, राइट? इक्वल इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं होता है। सो लेट्स से कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन लिया है, ठीक है? और आपने सर्टेन मान लेते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए आपने लोन को लिया है, राइट? एंड द लोन रीपेमेंट हैज टू बी डन इन अ वे कि आप एट द एंड ऑफ एवरी ईयर यू विल बी रीपेइंग सम ऑफ द अमाउंट, राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट लगता जा रहा है, जो बैंक से होता है हमारा, जो बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर जिसने भी लिया हो या आइडिया हो तो पता है ना, हर महीने हम रीपेमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ हमारी ईएमआई कटती है, राइट? क्या चीज दक्षिता? रिपीट करो। No, sir. This was मैं आवाज नहीं आई प्लीज, मेरी आवाज सर, ये ठीक से आ रही है? कॉन्सेप्ट्स में पढ़ चुकी हूँ। ओके ओके ओके, सॉर्टेड, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं भाई, एवरी ईयर, तो हमारा जो केस होता है इसमें कैट के उसमें हम मंथ वाइज नहीं जाते हैं, हम एनुअल उस पर बात करते हैं, राइट? सो एनुअली विल बी मेकिंग सम रीपेमेंट, राइट? और उसको करते करते हम अपने लोन को चुकाएंगे, राइट? तो जो तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज लेट्स टेक एग्जांपल, ठीक है? दैट माय प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, दैट इज आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 100 रुपीज, द टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी 3 years, and my the time frame will be 3 years and the rate of interest is going to be 10%, right? और मेरे को पूछा है कि in every, like how many installments are required by me, like what will be the value of each installment, like at the end of every year, so that at the end of 3 years I'll be able to repay the amount. Question clear है सभी को? The amount of money that I have to pay at the end of every year, so that at the end of 3rd year I have completely repaid the amount. Is the question clear to everyone? Guys, question clear है? Yes, no बोल दो यार. Perfect. Okay. So now the first step is calculate the amount to be repaid. अच्छा, ये जो questions होते हैं हमारे, ये CI based होते हैं, compound interest based होते हैं, right? So now the first thing is that calculate the amount to be repaid. मेरा अमाउंट कितना होगा बॉस? 100 रुपीज है, 3 साल के लिए 10% पे लिया है, कितना अमाउंट रीपे करना होगा? 133.1 रुपीज, करेक्ट? ये मेरे को रीपेमेंट करनी है इन टोटल, ठीक? अब इसमें क्या होगा कि भाई मेरे को उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, कितने ईयर्स में रीपे करना है? 3 years में। लिख लिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट? तीनों ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट रीपे करी है, तो फर्स्ट ईयर में भी ए रुपीज दिए, सेकेंड ईयर में भी ए रुपीज दिए, थर्ड ईयर में भी ए रुपीज दिए। अब गेम को समझना, तो जो हमारे लोन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें ये माना जाता है कि भाई मैंने, मान लेते हैं दक्षिता है, दक्षिता से मैंने 100 रुपए का लोन लिया था, और दक्षिता ने मेरे से बोला था कि भाई मेरे को 10% पे चाहिए 3 साल के लिए, मैं तेरे को दे रही हूँ 10% पे 3 साल के लिए, तो टोटल पैसे जो मुझे वापस चाहिए होंगे तुमसे, वो होंगे 133.1 रुपीज। मैंने बोला ओके। अब मेरे को 3 इंस्टॉलमेंट करनी है, ठीक? लेकिन इसका तरीका ये नहीं होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट का कि इसको बाय 3 कर दिया और बोला इतना पैसा मैं हर साल दूंगा तो 133.1 रुपीज मिल जाएंगे आपको। नहीं, ये तरीका काम नहीं करता, ठीक? दिस इज नॉट द राइट वे टू, द प्रॉपर वे टू सॉल्व इज कि आपने माना कि फर्स्ट ईयर में मैंने ए रुपीज दिए, अब क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड ईयर में भी मैं अपनी तरफ से दक्षिता को जाकर के ए रुपीज दे दूंगा, थर्ड ईयर में भी मैं अपनी तरफ से दक्षिता को जाकर के ए रुपीज दे दूंगा, राइट? लेकिन अब ये माना जाएगा कि जो फर्स्ट ईयर में मैंने ए रुपीज दिए थे दक्षिता को, वो ए रुपीज उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए और 10% पे उसने मुझे लोन दिया था, सो वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा जहां पे भी उसने जो है इन्वेस्ट करा है उस पैसे को।
So the A rupees that I gave to Dakshita in the first year will become 1.1 A rupees, that is 10% more than original while coming into the second year. समझ में आ रहा है गाइस? समझ पा रहे हो इस बात को? No, sir. किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है अभी? ओके, देखो लोन का जो क्वेश्चन होता है बेटा, उसमें ये माना जाता है कि आपने जो ए रुपीज दिए हैं, ठीक है, मैंने जो दक्षिता को ए रुपीज दिए फर्स्ट ईयर में, दक्षिता के पास आ गए। अब दक्षिता क्या करेगी, उस पैसे को जाकर के कहीं पे इन्वेस्ट करेगी, उससे हमसे मतलब नहीं है कहां पे किया, वो जाकर के कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी, राइट। जब वो इन्वेस्ट करेगी तो जिस रेट पे उसने मेरे को लोन दिया था, ये माना जाएगा कि वो भी वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस पे अर्निंग करेगी। तो जो मैंने ए रुपीज दिए थे, ठीक है, या इस तरह से मान लेते हैं, एक बार एग्जांपल मानो कि मान लेते हैं मैंने दक्षिता को 100 रुपीज दिए थे, दक्षिता ने कहीं पे इन्वेस्ट करा, ठीक, तो वो सेकेंड ईयर आते आते 110 रुपीज बन जाएंगे। अभी समझ में आ रहा है कि वो 110 रुपीज बन जाएंगे। मैंने दक्षिता को 100 रुपीज दिए, बट उसने उसको 100 रुपीज को इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, और उसको कितने पैसे मिल गए, 110 रुपीज। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो आई रिपीट, आई ब्रेक इट डाउन इवन मोर। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? ओके, यस सर। सॉरी, हाँ कुछ बोल रही है बेटा? चलो ओके। नाउ द 110 रुपीज दैट शी हैज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वो उसको दोबारा री इन्वेस्ट करेगी और दोबारा उस पर 10% कमाएगी। दैट मीन्स शी विल हैव 121 रुपीज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, राइट। तो ये ए रुपीज पहले बन गए 1.1 ए रुपीज, और 1.1 ए रुपीज दोबारा री इन्वेस्ट हुए 10% पे, तो वो बन गए 1.21 ए रुपीज। सिमिलरली जो सेकेंड ईयर में मैंने उसको ए रुपीज दिए थे, वो ए रुपीज भी उसने इन्वेस्ट कर दिए, तो वो भी मिलकर के क्या बन गए, 1.1 ए रुपीज। अब थर्ड ईयर में जब मैंने उसको दोबारा ए रुपीज दिए, तो ये माना जाएगा कि ये ए रुपीज भी मैंने दिए हैं, ये 1.1 ए रुपीज भी मैंने दिए हैं, और 1.21 ए रुपीज भी मैंने दिए हैं। दैट मीन्स द टोटल मनी दैट आई हैव गिवन टू हर इज नॉट एक्चुअली 3 ए, जो कि सिंपल कैलकुलेशन में आएगा ए रुपीज ए रुपीज ए रुपीज 3 ए रुपीज नहीं। जो मनी, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव गिवन बैक टू हर इज एक्चुअली 3.31 A rupees, and the amount of money that I had to give back to her was 133.1 rupees, correct? और मैंने दिए कितने, 3.31 A rupees, which is equal to 133.1 rupees। यहां से मेरी A की वैल्यू आ जाएगी, that is going to be somewhere around 40.2 rupees। तो 40.2 rupees के इक्वल इंस्टॉलमेंट से आई बी एबल टू रीपे अ लोन ऑफ 100 rupees which is at the rate of 10% due in 3 years of time। अभी समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है? देखो लोन सबसे, इसका SICI का सबसे ज्यादा पछड़े वाला टॉपिक जो है अपना लोन ही होता है, राइट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। एनी डाउट्स दैट यू हैव फॉर दिस? सर मतलब बताओ। जो एंड में आपने बोला कि एंड में वी विल अज्यूम दैट वी हैव गिवन 1.21a 1 plus 1.1a 1.1, plus हाँ, 1 plus a, right? So all right, of this adds to 3.31a, right, which will be equivalent to the जो amount हमने that I had to सम repay, निकाला था, perfect, हाँ, we had to do, which is 133.1. correct, Finally जो a आया in your calculation, which is 40.2, right? So ideally, realistically, we will still be paying 40.2 every year, right? every year we'll be paying। तो पहले साल में जो मैंने 40 रुपीज दिए ना उसको, उसने जो जाकर के कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, वो 40.2 रुपीज पे 10% का इंटरेस्ट कमाएगी। फिर वो 40.2 रुपीज का 44 पॉइंट समथिंग हो जाएगा रफली, ठीक, वो दोबारा उस 44 को इन्वेस्ट कर देगी और दोबारा उस पर 10% कमाएगी, और वो समवेयर अराउंड 48.4 के आसपास बैठेगा, 48.5 के आसपास मान लेते हैं। सिमिलरली मैंने सेकेंड ईयर में भी यार उसको 40.2 दिए थे, वो भी उसने इन्वेस्ट कर दिए एक साल के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में दिए हैं तो थर्ड ईयर आते आते सिर्फ एक साल का टाइम बचा है, तो एक साल में वो भी 40 रुपीज जो है तुम्हारे समवेयर अराउंड 44 के आसपास बन जाएंगे। और थर्ड ईयर में जो मैंने दिए 40 रुपीज, उसको इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो सिंपल सी बात है, उसने बोला कि भैया ये रहे आपके 40 रुपीज, तीनों को ऐड कर लिया, काम खत्म।
ठीक, वो इक्वल हो जाएगा 133.1 के। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बेटा? हाँ क्लियर है। सो दिस इज मोर अबाउट द लोन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। यूजुअली यू फाइंड अ क्वेश्चन every year in some or the other exam with respect to equal installment as well, ठीक है। So this was about the SICI का basic, some things that I had to I wanted to let you guys know, ठीक है। And the process that we follow in the class, the way our classes are conducted, right? And any questions that you have from today's class, like जो कुछ भी आज अपन ने cover up किया, उसमें से किसी भी तरह का कोई doubt, any one of you that you have, any doubts that you have? Alright, so we are done with the day. अब इसमें देखो हमारा जो प्रोसीजर होता है, I'll just explain it to you once as well, right? So what we basically do is like after equal installment में ही confusion है। हाँ अंकिता बता बेटा, just a second, guys। हाँ अंकिता, हाँ बताओ अंकिता, अनम्यूट करके बताओ एक बार। सर ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर वाली बात है ना, हम्म, इनमें कंफ्यूजन है मुझे, मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा टॉपिक। मैं समझा नहीं। अच्छा ओके, जो क्वेश्चन है मेरा बेटा इस केस में ये है कि मैंने एक लोन लिया, ठीक है, बट सामने वाले ने मेरे को बोला है कि भाई मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बार में तू 3 साल बाद ला करके पैसे देना, मेरे को हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे दे, राइट? समझ में आ रहा है इतना? बट बोलते चलना साइड बाय साइड, ठीक है, तो क्लियर, मेरे को भी क्लियर होता रहेगा, तेरे को भी, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मेरे को हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा ला करके देते रहना, तो और उसने बोला कि मेरे को इक्वल अमाउंट हर साल देते रहना, राइट? एंड दैट इज वाई द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में मैंने माना कि मैंने ए रुपीज दिए क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो सेकेंड ईयर में भी मैंने ए रुपीज दिए, और क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो थर्ड ईयर में भी मैंने ए रुपीज दिए। अब उस ए रुपीज पे जिसको मैंने दिया उसने कहीं पे इन्वेस्ट करा, उसने इंटरेस्ट कमाया। फर्स्ट ईयर में जो मैंने पैसा दिया था उसके पास 2 साल बचे थे इंटरेस्ट कमाने को। सेकेंड ईयर में जो मैंने पैसा दिया उसके पास सिर्फ 1 साल बचा था पैसा कमाने को। और थर्ड ईयर में जो मैंने दिया वो तो एज इट इज रह गया क्योंकि थर्ड ईयर में तो मैंने लोन ही पे ऑफ कर दिया। अभी क्लियर है अंकिता? यस सर। Alright guys, so what I was telling was कि अपनी जो क्लासेस लगती हैं, ठीक है, so what we usually do is that after every class, like हमारी जो बेसिक्स की क्लास होती है, क्यूए हम एक चैप्टर को 2 से 3 क्लासेस में कवर करते हैं, and it is divided into basics and advanced, right? So basic classes में what we do is हम सारे concepts और जो theoretical part होता है हम उसको कवर करते हैं, and post that we provide a booklet which consists of around 30 to 40 questions on every chapter, ठीक है, ताकि आपने आज जो भी बेसिक और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आपने उन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत बेसिक वे पे आप रिवाइज कर सको। एंड द नेक्स्ट क्लास दैट वी हैव, जो हमारी एडवांस की क्लास होती है क्यूए के सेक्शन में, दैट इज बेसिकली जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? अराउंड 15-20 क्वेश्चन हम क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं, और वो सारे मतलब जैसे पहले दिन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बिल्कुल बेस लेवल पे होते हैं, दूसरे दिन जो हम करते हैं वो हम धीरे धीरे जो है विद टाइम उसका लेवल इंक्रीज करते चले जाते हैं, राइट? देन उसके ऊपर भी आपको जो है बुकलेट प्रोवाइड की जाती है जिसमें यू विल फाइंड अराउंड 60 to 75 क्वेश्चंस ऑन एवरी सिंगल चैप्टर, राइट? And then apart from that, same for LRDI. LRDI maybe for every chapter you will be getting around 8 to 10 sets ka booklet. Again, that will be easy to medium level. And for VARC Sir, as what well, is LRDA? logical reasoning and data interpretation. ठीक है? Okay, And then sir. comes your VARC, जिसके बाद भी आपको बुकलेट्स दी जाएंगी, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक स्ट्रक्चर, जो एक टाइमलाइन अगर मैं आपको बताऊं, सो बाय मे वील बी कवरिंग अप योर कोर्स, राइट? मे में अपना कोर्स कवर करने के बाद जून से हम मॉक्स देना शुरू करेंगे। हमारे यहाँ जो है हम एक जनरल मॉक एनालिसिस भी लेते हैं, बट पोस्ट दैट वी ऑल्सो टेक अ 1-to-1 मॉक एनालिसिस, राइट? दैट इज लेट्स से आपको QLRDI में लेता हूँ, ठीक है? सो QLRDI अगर मैं लेता हूँ एंड आपको जो है अपना QLRDI का पोर्शन लेट्स से यू वांट टू एनालाइज इट विथ मी, so I'll be sitting with you on 1-to-1 basis. I'll be looking into your paper कि भाई आपने क्या किया, क्या क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे थे, क्या सोच रहे थे, किसी भी क्वेश्चन को टाइम देने के लिए क्या दिमाग लगा रहे थे, किसी को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग ऑन 1-to-1 basis. देन फ्रॉम जनवरी आपके जो है एवरी संडे आपके रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे फॉर क्यूए, राइट? एंड धीरे धीरे उसको LRDA और VRC में भी शिफ्ट करेंगे जो है, तो रिवीजन क्लासेस आपके चलते चलेंगे, राइट? एंड देन पोस्ट दैट सितंबर से आपका क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा, ठीक है? तो एंड टू एंड आपका एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर जर्नी ऑफ कैट प्रिपरेशन दैट विल बी डन विथ अस, ठीक है? तरीका हमारा यही रहता है, सिंपल थिंग इज कि बॉस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 2 थिंग्स दैट वी आर नोन फॉर,
फर्स्ट इज योर 1-to-1 मॉक एनालिसिस. सेकेंड, वी पर्सनली बिलीव कि भाई वट एवर डाउट्स, आपको जो भी डाउट्स क्लास के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप उसी वक्त जो है क्लियर करते चलो. क्लास का टाइम 10 से 15 मिनट शायद एक्सटेंड हो सकता है, बट डाउट क्लियर करना इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस. अदरवाइज जो है वो मामला फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो फिर वो आप एज ए स्टूडेंट, मेरे को पता है, फिर आपके मन से निकलता चला जाता है, वो छूटता चला जाता है, लगता है यार चलो ठीक है कर लेंगे सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एंड द थर्ड वुड बी दैट ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ वर्किंग हो, कुछ स्टूडेंट हो, कुछ घर पे हो, तीनों तरह के लोगों को तकलीफ आती है टाइम मैनेज करने में. जो घर पे है उनको भी आती है, क्योंकि वो बोरियत होने लगती है, भाई वही बैठे बैठे दिन भर वही काम करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क. और जॉब वाले और स्टूडेंट्स के साथ तो भाई ये इशू रहता ही रहता है. So there are going to be lots of ups and downs that are going to be there in your entire journey of CAT prep, right? So the thing is that any point of time, whenever you want to connect with us, और जो भी आपको चाहे strategy related चीजें हों, और any sort of thing that you want to talk about कि भाई नहीं हो रहा है, अभी मैनेज नहीं हो रहा है, या ये प्रॉब्लम आ रही है, या वो प्रॉब्लम आ रही है, so is it anything that's going on, we'll always be available to connect on call with you guys, right? So that's basically the way in which we proceed about our batch. ठीक है, रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आई गेस ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर, राइट? ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर, राइट? ऐसा कोई जिसके पास मेरा नंबर नहीं है? आई गेस एवरीवन हैज माय नंबर, राइट? इफ नॉट, आई विल जस्ट ड्रॉप इट इन द this chat box, right? Just a second. So my number is this. So this is my calling number, and the other one, नहीं, अभी तो मेरे पास दोनों नंबर मेरे एक्टिव है. So either of the numbers, you feel free, you can contact me over here. ठीक है, for text I am available till around 1 or 2 AM in the morning. And अगर आप कॉल पे कोई चीज भी डिस्कस करना चाह रहे हो, तो आप अगर अभी चाहो तो अभी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कल भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, राइट? आई होप यू गाइस लाइक द क्लास. ठीक था गाइस? अच्छा था. ऑलराइट, चलो, आई विल सी यू गाइस देन. ठीक है, चलो, ऑलराइट गाइस. For any queries, feel free to WhatsApp me or like call me. Okay? All right, guys. Tata, bye bye. Good night. Thank you, sir.